نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، ممبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ اپنے بال بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے، پیٹ پر فاقہ کیجئے، سر پر کفن باندھیے، اوقات کو داؤ پہ لگا دیجئے، خود جاہل نے اپنے بچے کو جاہل مت رکھیے۔ 2-3 مثال دوں گا، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، 2-3 مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ باپ بکری چرانے والا بکری بیچ کر کے بال بچے کو پڑھایا اور بچہ پڑھ لکھ کر کے وزیر بن گیا۔ اب بادشاہ نے خوش ہو کر کے کہا کہ میں تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس نے تمہیں پڑھا لکھا کر کے وزیر بنایا، میں تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو باپ کو خبر ہوئی ہے، چپل پہنے ہوئے ہے اور لنگی پھٹی ہوئی ہے، گنجی پر ہے اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، چرواہا بنا ہوا باپ سامنے کھڑا ہے بادشاہ کے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ یہ سامنے جو کھڑے ہیں یہی میرے باپ۔ کہا کہ یہ بے وقوف، یہ چرواہا یہ تیرا باپ ہے؟ کہا بے وقوف میرے باپ کو مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا نہیں۔ اگر میرا باپ بے وقوف ہوتا تو پڑھا لکھا کر کے مجھے وزیر بنا کر کے تمہارے برابر نہیں کرتا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بلیک بورڈ میں ماسٹر صاحب نے لکیر کھینچی اور بچوں سے کہا کہ اس کو چھوٹی کر کے دکھاؤ۔ ایک بچہ اٹھا اور اسے مٹانے لگا، کہا مٹا کر کے ترقی نہیں ہوتی ہے بیٹا، دوسرے کے لیے مٹ کر کے ترقی کرنا، دوسرے کو مٹا کر کے ترقی مت کرنا، اس کو مٹائے بغیر چھوٹا کرو۔ ایک بچے کو سمجھ میں آ گیا، اللہ سب کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے پینسل لی اور لکیر کو بڑا کر دیا۔ کہا کہ دیکھیے ماسٹر صاحب، میں نے آپ کی لکیر کو چھوٹا کر دیا، اپنی لکیر کو بڑا کر دیا۔ کہا کہ بیٹا دوسرے کو مٹا کر کے آگے مت بڑھنا، دوسرے کے لیے مٹ کر کے آگے بڑھنا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ گیدڑ جا رہا تھا، اس کو کاغذ مل گیا، وہ آ کر کے اپنے قافلے سے کہتا ہے کہ لائسنس مل گیا، اب جلسہ سننے کے لیے ہم لوگ بکیا جا سکتے ہیں۔ کہا کہ لائسنس مل گیا، بکیا جا سکتے ہیں، کتے نہیں ہمیں ماریں گے، کتے ہمارے پیچھے نہیں چھوٹیں گے۔ بکیا کا کتا بہت ہوشیار ہوتا ہے، وہ تو گیدڑ کو دیکھتے ہی اسی گردن مڑوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کتے کو کیا جواب دیں گے؟ کتے کو بتا دیں گے کہ لائسنس ہم کو مل گیا ہے جلسہ سننے کا۔ کہا کہ چلو آج تو جلسہ ہے بکیا میں، جا کر کے جلسہ سن کر کے آتے۔ تو لائسنس والا گیدڑ سب سے آگے آ رہا ہے، پیچھے ٹولا آ رہا، جیسے ہی ابھی منہ پر آیا تھا کہ کتا چھوٹا، سب سے آگے وہی کاغذ والا گیدڑ بھاگ رہا ہے۔ اب پیچھے گیدڑوں نے کہا کہ ان کو کاغذ تو دکھاؤ، لائسنس تو دکھاؤ۔ کہا کہ جلدی سے بھاگو، یہ بھی تمہاری طرح جاہل ہے۔ چوتھی مثال دے رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 2 بوڑھے 80-85 سال کے حکا پی رہے تھے، دل کا دھواں نکال دے، حکا پی رہے تھے، دل کا دھواں نکال دے، گپ پر گپ دے رہے تھے، بھری پر بھری دے رہے تھے۔ 2 بوڑھے تھے، ایک جوان وہاں سے گزرتا ہے، مدرسے کا طالب علم گزرتا ہے۔ بوڑھے سے کہا کہ حکا ہی پیتے رہو گے کہ دینداری بھی کچھ رکھتے ہو؟ کچھ سوال پوچھو تو جواب دے سکتے، آ کے پوچھو جو سوال پوچھنا ہے، ہم تو کمپیوٹر ہر سوال کا جواب جانتے ہیں، ہم تو کنیا کا بھی ماموں ہے، دلہا کا بھی ماموں، جو سوال کرنا ہے پوچھو۔ کہا غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کہا 15۔ کہا 15؟ اس کے بعد کہا کہ 10۔ کہا کہ 10۔ تو بغل والے نے ٹھوکر ماری، کیوں بچے کے سامنے بیوقوف بن رہے ہو، 3 بتا دو۔ کہا کہ یہ تیرا باپ 15 تو مان نہیں رہا ہے، 10 تو مان رہے، 3 کہاں سے مانے؟ اولاد پڑھاؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ،
फौजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हदाहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। 2-3 पैगाम 7 मिनट का है। आप भी सोचेंगे 7 मिनट करके हम लोगों को 7 कब्रिस्तान ही पहुंचा देंगे। 7 मिनट में आपका जलसा निकल रहा है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुदा का खौफ आपके दिल में हो तो आपसे बढ़कर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। खुदा का खौफ आपके दिल में है, आपसे बढ़कर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह खौफ खुदा दिल में होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नमूने को दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गर्मी में रोजा आ गया, बहुत सारे लोगों की नबज ठार हो गई। एक पोटली दवाई ला करके बैठा हुआ है। बेटा कह रहा कि हुजूर क्या इरादा है? कहा कि नीयत ठीक नहीं है, गर्मी का रोजा है, नबज ठार हो रही। दुनिया को दिखाने के लिए दवाई है, दुनिया से धोखा है, खुदा से धोखा नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, गर्मी में रोजा आ रहा है, लंबा दिन होगा और यहाँ नबज ठार हो रही, रोजा रखने के लिए बाप तैयार नहीं। एक अंग्रेज ने कहा कि ऐसा करो, आलिम को पैसा दे दो, इस रोजा को ठंडी में पहुंचा देगा, गर्मी से सीधा ठंडी में पहुंचा देगा। ये मुसलमान कहता है कि ये इस्लाम है, कमेटी के ऊपर नहीं चलता है, आसमान के खुदा के ऊपर चलता। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेज कहता है कि जब तक मुसलमान सूद नहीं खाएगा तरक्की नहीं कर सकता। अंग्रेज कहता है मुसलमान जब तक सूद नहीं खाएगा तरक्की नहीं कर सकता। एक साहब आए सूद के बारे में पूछने के लिए कि आलिम को पैसा दो और सूद को जायज कराओ। तो आलिम ने कहा कि ये मेरे बाप की खेती नहीं है, कुरान में है। कुरान का जब ज़बर नहीं बदल सकता तो हराम को हलाल कैसे किया जा सकता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जख्म लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। जख्म लगा हुआ है, इन्ना लिल्लाह नहीं बोलता। जख्म लगा हुआ है, तकलीफ है, इन्ना लिल्लाह नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता। मुसीबत में इन्ना लिल्लाह और खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मुसीबत है, इन्ना लिल्लाह नहीं बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें रांची जाना तो नहीं है? मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलते हो? कहा ये तकलीफ खत्म हो जाएगी, ईमान सलामत है, अल्लाह का करम है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूं। तस्बीह लेकर के जुनैद बगदादी हैं। लोगों ने कहा कि तस्बीह की आपको क्या जरूरत है? 24 घंटा तो आपके दिल में खुदा है, आपको तस्बीह की क्या जरूरत है? कहा इसी तस्बीह की बरकत से अल्लाह ने वली बनाया है, इस तस्बीह को कैसे छोड़ो? एक मजलूब है, रास्ते से गुजर रहा, क्या कहता है? तू मैं तेरा बंदा नहीं, तू मेरा खुदा नहीं। लोगों ने कहा किससे कह रहा है? तो कहा मैं अपने दिल से कह रहा हूं। मेरा दिल कह रहा खीर खिलाओ, मेरा दिल कह रहा खीर खिलाओ, मेरी जेब में पैसा नहीं, मेरी जेब में पैसा नहीं है, और ये दिल कह रहा खीर खिलाओ, खीर खिलाओ। ये दिल कह रहा है जेब में पैसा नहीं है, तो मैं दिल से कह रहा हूं तू मेरा बंदा नहीं है, तू मेरा खुदा नहीं है, कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूं। तू मेरा खुदा नहीं है, मैं तेरा बंदा नहीं। नफ्स को जब ताबे करेंगे, नफ्स को जब ताबे करेंगे तो इंशाअल्लाह खुदा का खौफ आपके दिल में आएगा, और नफ्स के जब ताबे होंगे तो खौफ खुदा दिल से निकल जाएगा। इंशाअल्लाह खौफ खुदा दिल में रहेगा। हाथ उठा दीजिए। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे उस कोश्ती तो है उम्र भर की, न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे उस कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी तो दबा ले, कभी वो दबा ले। अगर खुदा को मानते हैं, दिल में खौफ खुदा है,
तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को सजदे से आबाद करेंगे। आखिरी पैगाम आ रहा है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं, उनके हवाले से मुझे एक पैगाम सुनाना है 3 मिनट का। आपको एक पैगाम 3 मिनट का, उनको एक पैगाम 3 मिनट का देना है। आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। दुआ पर आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 3 मिनट में सुना रहा। बारिश हो रही है, आदमी नमाज पढ़ रहा, सब लोग भाग गए, वो नमाज पढ़ रहा बारिश में। लोगों ने कहा अरे भाई क्यों बारिश में नमाज पढ़ रहे थे? बारिश छूट जाती नमाज पढ़ते। कहा कि बारिश छूट जाती नमाज पढ़ते, नमाज हो रही है, बारिश हो रही है, कपड़ा भीग गया, मेरे पास घर में बहुत कपड़े, मैं बदल लेता, लेकिन अगर नमाज टूट जाती, मौका नहीं मिलता, तो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। कहा नमाज पढ़ो, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा कि नमाज पढ़ो, कहा कि तू पढ़े तेरा बाप पढ़े, मैं नमाज नहीं पढ़ता। कहा नमाज पढ़ो, तो कहा कि तेरी नमाज तुझे जन्नत ले जाए, मेरी नमाज मुझको जहन्नम ले जाए। नमाज पढ़ने के लिए कहिए, लेकिन जब वो मान नहीं रहा तो उसको छोड़ दीजिए। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिल्डिंग बना करके रखा है, बिल्डिंग बना करके रखा है, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहा है। डीलर है, इधर से डंडी मार रहा, उधर से डंडी मार रहा, दाढ़ी भी रखे हुआ है, टोपी भी रखे हुआ है। एक दुर्वेश आ गया, कहा कि वजू करा दीजिए, मुझको वजू नहीं आता। तो कहा कि ठीक है दीजिए, वजू कीजिए। 3 बार हाथ धोया, 3 बार कुल्ली किया, 3 बार नाक में पानी डाला, और 3 बार मुंह धोना था तो 4 बार धो रहा। कहा कि क्यों इसराफ कर रहे हो, क्यों एक चुल्लू पानी ज्यादा ले लिया? कहा कि वाह साहब, वजू के पानी में एक चुल्लू बढ़ा तो इसराफ नजर आता है। ये डंडी मार करके जो दुनिया बना रहे हो, ये जहन्नम तुम्हें कहां ले जाएगा, ये तुम्हें कहां ले जाएगा। चौथी मिसाल ला रहा, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा आया है नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ करके मस्जिद में रुक गया। इमाम साहब ने कहा कि खाते कमाते नहीं हो? कहां से खाते कमाते हो? मस्जिद ही में बैठ करके रहते हो, मस्जिद ही में बैठ करके रहते, खाओगे कमाओगे कहां से? तो कहा कि अच्छा बाद में जवाब दूंगा, पहले नमाज लौटा के दीजिए। बादशाह इमाम साहब के कान खड़े हो गए कि नमाज क्यों लौटा रहे हो, हमारे पीछे नमाज पढ़कर लौटा क्यों रहे हो? कहा कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया और तुमको अल्लाह के वादे पर शक हो रहा है, मुझे तुम्हारे ईमान के बारे में शक हो गया, इसलिए नमाज लौटा रहा हूं। जाली पीर आया है, मुरीद के यहाँ आया है, तो मुरीद ने पूछा कि क्यों पीर साहब आजकल कमजोर हो गए, खीर नहीं मिली खाने के लिए, खीर नहीं मिली है, कमजोर हो गए। कहा कि तुम्हारे वास्ते नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हारे बेटे के वास्ते नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान के वास्ते नमाज पढ़ता हूँ, और तुम सब की तरफ से मुझे ही पुल सिरात पार करना है। कहा कि वाह पीर साहब, आप कितने हमदर्द हैं, आपको 2 बीघा जमीन लिख देते। तो पीर साहब के आप कान खड़े हो गए कि मेरा धोखा कामयाब हो गया, मेरे धोखे में मेरा मुरीद आ गया। तो कहा पीर साहब ने कहा कि वो जमीन दिखा दो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कहा चलिए मैं दिखाता हूँ। तो छोटी छोटी आल होती है, छोटी छोटी आल होती है, आल होती है जिस पर खेत की आल होती है। कहा कि चलिए दिखा देता हूँ। अब पीर साहब इतने मोटे, उनको चला नहीं जा रहा, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, और मुरीद ने पीछे से एक लात मारा। पुलसिरात पर चलते हैं और लोगों को मुतमईन करते हैं कि तुम्हारी तरफ से मैं नमाज पढ़ता हूँ, पुलसिरात पर मैं पार हो जाऊंगा। पुलसिरात इतनी बारीक है, उससे पार हो जाते हो, यहाँ छोटी सी आल है, उस पर चलना तुम्हारे मुश्किल ही हो रहा है। मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। इमाम साहब ने कहा नमाज के लिए आओ। बूढ़ा नहीं आ रहा था। एक दिन जैसे आया नमाज पढ़ने के लिए, भैंस मर गई। बेटों ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब्बा हुजूर, एक बार नमाज पढ़ने के लिए गए, भैंस मर गई, दूसरी बार पढ़ोगे पता नहीं पूरा घर जनाजा उठ जाएगा, खुदा के वास्ते मत पढ़ो। बूढ़ा ने सोचा कि अब यही इलाज है, जब भी बेटा इलाज में खाना खर्चा में कमी करेगा, नमाज की धमकी दूंगा। अब जब खाने खर्चे में, रुपया पैसा में बच्चा सब कमी करे तो कहेगा बेटा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कहा अब्बा हुजूर खुदा के वास्ते खाना खर्चा पूरा दूंगा, नमाज पढ़ने के लिए मत जाओ। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल, सामान घर में रखा था, भूल गया, आया इमाम साहब के पास। इमाम साहब बता दीजिए सामान भूल गया हो। कहा कि वजू करके नमाज शुरू कर दो, याद आ जाएगा कहा तुमने सामान रखा है। जैसे ही वजू करके अभी 1 रकात पढ़ी, फौरन याद आ गया।
दूसरी रकात पढ़ करके सलाम किया, इमाम साहब के पास आ गया। इमाम साहब याद आ गया, कहा कि पता है तुम्हें कैसे याद आ गया? शैतान ने भुला दिया था, जैसे वजू करके तुम खड़े हुए उसने तुम्हें याद दिला दिया। वो कब चाहता है कि खुदा का बंदा नमाज में हो। इंशाअल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकार मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए जनाजा पढ़ने वाले। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।